अब नहीं है हिचकिचाना, मन के स्वास्थ्य पर है ध्यान लगाना। अब नहीं है हिचकिचाना, मन के स्वास्थ्य पर है ध्यान लगाना। मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी। मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी। चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ। चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने, 844-844-0632. Hello and namaskar. A very warm good afternoon to everyone. Welcome back you all to our NCERT interactive session. This side Shivani Jha and you are watching us on PM eVidya channel number 6 and channel number 11. Also, let me know you that later on you can also connect us through various mediums like our official YouTube channels, that is NCERT Official and NCERT PM eVidya class 6 and 11. Also, let me know you that you already know that Manodarpan and Paricharcha sessions are held under the initiative of Ministry of Education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan for providing psychosocial support to the students, teachers as well as parents. Well, let me know you, we have a dedicated website for you all also, that is www.manodarpan.education.gov.in. On this website, you will find the answers to most of your questions, queries, whatever you want, and also will also get help from our counselors. You know, every Friday we bring a different topic for you all for this Manodarpan Paricharcha session. So as for today, we also brought a very important topic for you all. Whether you are parents, teachers, students, this topic will be very important for all of you. So let me introduce the topic for today's session. The topic for today is Disconnect to Reconnect, Mastering the Art of Digital Detox. And yes, to discuss and to elaborate this topic in detail, we have also joined by our 4 panelists today. So let me introduce to them first. Firstly, we have joined by Dr. Kalpana Maski, who is Professor at RIENCERT भोपाल. मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में. नमस्कार कल्पना मैम. Okay. Now, secondly, we have joined by Miss Sarika Raghuvanshi ma'am, who is counselor in Army Public School, Golconda, Hyderabad. Ma'am, a very warm welcome to our session and namaskar. Namaskar. Okay, next we have joined by Miss Soumya Sahu, who is clinical counselor in Bhopal. Ma'am, आपका भी बहुत स्वागत है. नमस्कार. Namaskar. Thank you. And last but not the least, we have also joined by Ms. Srishti Mishra, who is Assistant Professor at RIE Bhopal. Ma'am, also welcome you to our session and namaskar. Okay. सो मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे कि हर सेशन में आप सभी जानते हैं कि किसी भी तरीके का डाउट या फिर सवाल आपके मन में आता ही है, लेकिन आप किस तरीके से हमसे वो सभी पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि आप इस पूरे सेशन में हमसे बनेंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी तरीके का डाउट अपना क्लियर करने के लिए. हमारा 2 फ़ोन नंबर है, आप चाहें तो किसी भी फ़ोन नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. फ़ोन नंबर आपको अभी आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा. पहला फ़ोन नंबर है 8800440559. इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 8448440632. सो अब चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलेंगे अपने सेशन की तरफ. और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज का टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो टॉपिक है डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स. सो मैं आप सभी को पहले एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगी आज के टॉपिक में कि बार बार मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये आज का टॉपिक आप सभी पेरेंट्स, टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज हम सभी जानते हैं आजकल की डिजिटल दुनिया में हम
इतना फ़ोन में खो चुके हैं, इतना ऑनलाइन चीज़ों में खो चुके हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे आस-पास भी कुछ चीज़ें हैं, हमारे आस-पास भी कई लोग हैं, हमारी फैमिली है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आस-पास घटनाएँ घट रही होती हैं। लेकिन हम तो उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम हमेशा टीवी में, अपने फ़ोन में, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करते हैं। बट क्या आप सभी जानते हैं कि उसका हमारे मेंटल हेल्थ, इवन हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, उस पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आज का टॉपिक जो है इसीलिए खास होने वाला है क्योंकि ये हम सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और एजुकेटर्स, पेरेंट्स सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप सभी के लिए जानना भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होने वाला है। तो इसी के साथ, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था, पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी एक्सपर्ट, जो इस पूरे टॉपिक को आपको डिटेल में जानकारी देंगे और बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मेरा सवाल, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है इस टॉपिक को लेकर के, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि डिजिटल डिटॉक्स को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसी को लेकर के फर्स्ट क्वेश्चन है मैम, कल्पना मैम, मेरा आपसे कि मैम, वाई डिजिटल डिटॉक्स इज इम्पॉर्टेंट इन डिजिटल एज, और हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसे पढ़ने की, इसको समझाने की, जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स इस टाइम जुड़े हुए हैं। सो मैम, मैं चाहूँगी कल्पना मैम कि आप इस क्वेश्चन को जो है एलैबोरेट करें, आंसर इसका बताएं। नमस्कार, पहले तो सभी को नमस्कार। नमस्कार। जो आज का टॉपिक है, एक्चुअली इट इज अ वेरी डिमांडिंग टॉपिक ऑन विच वी नीड टू डिस्कस अपॉन हाई टाइम एक्चुअली, बिकॉज आवर स्टूडेंट्स आर लिविंग इन द वर्चुअल वर्ल्ड। और उस वर्चुअलिटी में, जैसे अभी आपने ही कहा कि हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, रियल लाइफ से दूर होते जा रहे एग्जैक्टली हैं, मैम। तो हाउ वी कैन डिटॉक्स देम। तो ये बिल्कुल सही समय है कि हम ये इनिशिएटिव लें और बच्चों को हम डिजिटल डिटॉक्स करवाएं। डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट, व्हाट डज इट मीन्स? Reconnect to life, disconnect from digital world, virtual world, and reconnect them to again their real life, so they can be a good person. They can lead a very happy and peaceful life. So we need to master this art of digital detox. Why it is important? This is really very important to discuss on this topic, because first thing we usually do after waking up, what we do actually, एग्जैक्टली what we मैम, do सबसे actually, पहले फ़ोन ही हम चेक करते हैं, अगर आज yes, के टाइम में देखें। राइट। हाँ, उठते ही हम फोन देखेंगे, अलार्म भी हमारा फोन से बजेगा, एंड व्हाट वी स्टार्ट रीडिंग मैसेजेस, वी स्टार्ट रीडिंग ईमेल्स, वी स्टार्ट रीडिंग व्हाट्सएप ग्रुप की स्कूल से कोई मैसेज तो नहीं आया। इवन स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम, कि कैसे हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए लाइफ को आसान बना रहे हैं, एक्सेसिबल बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड। तो हाउ वी नीड टू minimize it, what we can do to minimize it is very important. Next, ma'am. Next. So it is really very hard to live without technology in this today era. So we are totally dependent on technology in all the aspect. If you do shopping, online shopping, if you want to communicate something, we do calls, even work from home trend is going on these days. Video games used to play by the students. Education is also one of the important. Online classes are going on, online homework is given by the school, and the entertainment, recreational things also. So we are totally dependent on technology, or I can say technology is dominated on us. इतनी डोमिनेट हो गई कि हर चीज आपको जो भी करना है, चाहे स्टूडेंट को करना है, चाहे पेरेंट्स को करना है, हम बिना टेक्नोलॉजी के नहीं कर पा रहे हैं। इवन टेलीविजन भी अभी बंद हो गया। ऑन मोबाइल वी यूज टू वॉच movies or the other programs and listen music also using the phone. Next. So I can say in this today's technology driven world, school going children are increasingly immersed in digital devices for education, their entertainment and communication. In aspect of children, I can say for education, if they will get any assignment, what they will do, they will Google. They want to Google what I can write, how can I modify my content. For entertainment, they used to play video games, mobile games, and for communication, they use the phone. So they are totally in this world of technology. So while technology, even
इतना कुछ होने के बाद भी while टेक्नोलॉजी ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स, बहुत बेनिफिट है, लेकिन इसके कहीं नुकसान भी है, जिसकी वजह से बच्चे की मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग अफेक्ट हो रही है। और ये जो मेंटल सोशल वेलबींग अफेक्ट हो रही है, इसी की वजह से आज हम इस परिचर्चा में पैनलिस्ट सब बैठे हुए हैं कि कैसे हम इसको बच्चों की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट। So this is the high time on, hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So this is the high time to disconnect our learners, our children, both physically and emotionally from all those devices which are used by them, which are putting them into the virtual world that constantly steal their attention, satisfying their inexplicable fear of missing something. So we need to inculcate such habits, digital habits by which they can detox digitally. तो हमको ये कहना है, they can learn to say no, no to what? No to laptops, no to gadgets, all the electronic gadgets, etc. So that they can live in the real world. So a digital ओके, सो सौम्या मैम, यहाँ पर साथ ही हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन कल्पना मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि डिजिटल डिटॉक्स को अपने आप से कैसे दूर करें, कैसे इसका मतलब समझे, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैम ने कहा कि हम काफ़ी इसके एडवांटेजेस भी देखते हैं, बिकॉज आज के टाइम में ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही हमारे जितने भी वर्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुके हैं, यानी हमें इजी तरीके से सारे काम हमारे हो सकते हैं, यानी वो एजुकेशन हो, हमारे शॉपिंग हो, या वट जो भी चीज़ें हो। इसी के साथ लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम डिजिटल डिटॉक्स के शिकार हो चुके हैं, हम किस किस तरीके से ये पता लगा सकते हैं? तो यहाँ पर हम सौम्या मैम से जानना चाहेंगे, और मेरा अगला क्वेश्चन इसीलिए सौम्या मैम से भी रहेगा कि मैम, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द अर्ली साइंस ऑफ डिजिटल ओवरलोड इन आवर डेली रूटीन्स? तो मैम, सौम्या मैम, आई वांट कि आप इस क्वेश्चन को एलैबोरेट करें, हमारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। Okay, ma'am. Thank Yes, you for ma'am. this opportunity. Yes, So ma'am. we're gonna start with the first and the most common thing we can notice is the physical symptoms. Physical symptoms like, okay, हम लोग बहुत टाइम तक अपने लैपटॉप्स, अपने फोन्स, अपने टैबलेट्स से जब जुड़े रहते हैं, we can always feel that eye strain, that eye discomfort. हमारी आईज ड्राई हो जाती हैं, Exactly. हमारे नेक्स, जॉ एंड शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। हमारा जो बैक होता है, जो पोस्चर होता है वाइल स्क्रोलिंग द फोन, वाइल लुकिंग एट लैपटॉप, वो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में गलत चली जाती हैं। वी हैव सो मेनी केसेस ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सो मेनी पीपल हु हैव posture that is impacting their entire body, Yes. right? And there is this fatigue, जब हमने कुछ भी नहीं किया है बट हम स्टिल टायर्ड फील कर रहे हैं, हमने दिन भर से फोन चलाया है, वी हैवंट एक्चुअली इंडल्ज्ड इन अ वेरी इन एन एक्टिविटी जिसने हमारा बहुत सारी एनर्जी ली है, बट स्टिल वी फील टायर्ड. So fatigue is one of the symptoms that we can feel when we indulge in digital overload. Next up, we have psychological signs of it. So if we look at the psychological signs, we have increased anxiety and stress, because हम इस ऐसे रेट पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिससे हमारी रियल लाइफ compete कर ही नहीं सकती, right? Yes. So we have this constant need to look at our notifications. I think a lot of people from corporate, students, teachers, सब अपने फोन में constantly देखते रहते हैं किसका मैसेज आया, किसका ईमेल आया है, and that has ultimately created an environment of urgency. For example, अभी ईमेल आया है तो हमें अभी रिस्पॉन्ड करना है, हमें अभी मैसेज आया है तो हमें अभी रिस्पॉन्ड करना है, and that leads to the second symptom, which is irritability. हम जब इतनी सारी चीज़ों को constantly perceive कर रहे हैं, constantly we take in, that leads to a lot of irritability. फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का वो चीज़, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक सेट हो चुका है, दैट व्हेन वी वांट समथिंग वी वांट इट नाउ, वी वांट इट एट दिस वेरी मोमेंट. अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए, हमारे पास ब्लिंकिट है, अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे पास चैट जीपीटी, गूगल है. सो व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स डोंट वर्क, हमारा वो इरिटेबल एंड एनॉयड पार्ट बाहर आ जाता है.
we get very frustrated when we are not able to do something. So हमारा patience is decreasing धीरे धीरे. That leads to third symptom of psychological distress, that is difficulty concentrating. Because हमारा patience खत्म हो गया है, we don't have that patience to sit through something. अगर हमें इमीडिएटली लर्न नहीं होती चीज़ें, अगर हम इमीडिएटली किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाते हैं, तो दैट फोर्सेस अस टू लीव द टास्क एंड जस्ट मूव अहेड, राइट? एंड द फोर्थ थिंग इज फीलिंग ओवरवेल्म. हम लोग इतनी सारी चीज़ें एट द सेम टाइम व्हेन वी आर perceiving so many things, when our cognition is overloaded, that will make us feel overwhelmed, because with the information that we're actually searching for, बहुत सारी unwanted information भी हमारे पास आ रही है. That leads me to talk about the third thing, which is behavioral changes. क्योंकि हमारा screen time बहुत ज़्यादा हो चुका है, we are completely engrossed in binge watching Netflix shows. We are engrossed in YouTube shorts. We're engrossed in Instagram या TikTok के reels. Why? Because it's giving us something to watch all the time. And there is this compulsive checking कि हम 2 मिनट अपने फ़ोन के बिना नहीं बिता सकते हैं. हमें लगता है कुछ ना कुछ हम किसी चीज़ पे मिस आउट कर रहे हैं, या फिर समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स. And the third thing that is happening is we're avoiding offline interactions. How is it that in an age जहाँ पे हम सब बहुत easily connected हैं, we are disconnected from the real world? The fourth thing is impact on productivity. So because हमारा concentration low हो रहा है, because there is very little patience left in us, our productivities are also decreasing. Because for creativity to flow in, you have to have patience for it. You have to perceive things in the outside world, sit with them. And हम constantly multitasking कर रहे हैं कि हमें ये भी करना है, हमें maybe assignments भी करना है, project भी बनाना है, we have to learn these lessons. And again, the culture of urgency that has been created, वो हमारी productivity पे भी impact कर रहा है. And there is this sense of perfectionism because of social media, because of internet. हम सबको एक idea आ चुका है that everything in our life has to be perfect. If we're clicking pictures, that has to be perfect. If we are doing an assignment, that has to be perfect. So we have actually gone into this cycle. जब हमारा perfectionism नहीं पहुंच पाता, we move on to escaping from that task, which is very simply called procrastination. राइट? तो यहाँ पे जब हमें प्रोजेक्ट हम एंड मोमेंट तक डिले करते हैं, हम अपनी प्रिपरेशंस को होल्ड पे रखते हैं, एंड दैट इज all of these factors have a lot of impact on our productivity. The fifth sign of digital overload is a reduced social interaction and us neglecting our responsibilities. So we are disconnected from people in the real life. We might know what our relatives and friends are up to on Instagram या Facebook या किसी और प्लेटफॉर्म पे, but do we really know कि उनको मतलब वो कैसे हैं, या फिर what is going on in their life, the true life जो हम actually live कर रहे हैं. So I think these are all the signs of digital overload, and these are all the signs where when you need to reflect upon them and try to understand that this is the time that I need to take a break from it. एग्जैक्टली सौम्या मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इस पूरे साइन को कि किस तरीके से आप सभी व्यूअर्स समझ सकते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स के बारे में किस तरीके से आप पता लगाएं क्या क्या साइंस होते हैं इसके. एंड लास्ट पॉइंट जो मैम ने कहा वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी था कि मैम आपने इस तरीके से बताया कि हम इंस्टाग्राम पर अपने फैमिलीज फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ देख करके ये पता लगाते हैं कि किस सिचुएशन में, बट वो रियल नहीं होता है, बिकॉज दैट वॉज अ रियल वर्ल्ड, नॉट अ रियल वर्ल्ड. सो मैम, सौम्या मैम, आपके साथ ही मेरा अगला क्वेश्चन रहने वाला है फिर से. लाइक आपने यहाँ पर साइंस की बात की कि क्या क्या साइंस होते हैं, बट नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये समझें कि
इन सब चीज़ों से यानी डिजिटल दुनिया में खो करके हम अपने लोगों से अलग हो रहे हैं, यानी जो हमारे आसपास लोग हैं हम उनसे हट रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, बल्कि हमें उनसे जुड़ना चाहिए, बट उन चीज़ों को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा डिस्कस करें, एलैबोरेट करें इस टॉपिक को। Of course, ma'am. यस So, मैम। one of the most important impact of digital overload on real world is that हमारी presence and mindfulness बहुत ज़्यादा reduce हो चुकी है. When was the last time we were completely content या happy in doing something absolutely mindless? कब ऐसा था कि हम जब गाड़ी चला रहे हैं या फिर हम बस से स्कूल जा रहे हैं या फिर हम कोई भी टास्क कर रहे हैं, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व किया है, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट किया है, या फिर जस्ट ट्रूली enjoying द मोमेंट वी आर इन. सो reduced presence and mindfulness is actually one of the things that makes our life enjoyable, right? अगर हम प्रेजेंट है, अगर हम माइंडफुल हैं, इट विल हेल्प अस enjoy. अगर हम गैदरिंग में हैं तो इट विल हेल्प अस enjoy द पीपल वी आर विथ, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे. अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वी ट्रूली enjoy हमारा जो रास्ता है, हमारी डेस्टिनेशन है, द पीपल वी आर विथ. एंड डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इस चीज़ को काफ़ी कम करता जा रहा है. अगर हम किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, वी आर फोकस्ड ऑन गुड वीडियोस, एस्थेटिक पिक्चर्स. हम ये फोकस नहीं कर रहे हैं व्हाट विल ट्रूली ब्रिंग अस पीस और हैप्पीनेस इन दिस मोमेंट. Another thing that is getting impacted is the decreased enjoyment of offline activities. Because we are less present, we are less mindful, हमारी activities हम enjoy कर ही नहीं पा रहे हैं. जिस स्पीड से हमको डोपामीन ऑनलाइन एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही हैं, हर 2 सेकंड की रील में अगर हम हंस सकते हैं, अगर हम रो सकते हैं, हम एवरी अदर इमोशन जब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमारी जो रियल लाइफ है इट विल नॉट बी एबल टू मैच दैट स्पीड ऑफ स्टिमुलेशन. सो हम अपनी जो ऑफलाइन एक्टिविटीज है उसको थोड़ा कम इंजॉय करने लग रहे हैं. एंड द थर्ड थिंग इज एस्केपिज्म. वी आर एस्केपिंग फ्रॉम रियल लाइफ. हमें बुरा लगता है, फोन रील्स देख लेंगे. हमें अच्छा लग रहा है, हम उस चीज़ का स्टेटस डालेंगे. हमें अगर स्ट्रेस हो रहा है तो हम गेम खेल सकते हैं. हमें लोनली लग रहा है तो वीडियो चैट कर सकते हैं, which might be good sometimes, but in the long run, it is really slowing down our skills to survive in the real world. क्योंकि हम कितना भी टाइम ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हैं, बट जाना तो हमें रियल वर्ल्ड में ही है ना. हमें रहना तो रियल वर्ल्ड में है. एंड इट्स स्लोली डिक्रीजिंग आवर स्किल्स. वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड अस mindfully. It is also impacting relationships. Everything is out on the social media. हम टेक्स्ट कर रहे हैं, देर आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हम गेम्स खेल रहे हैं, बट वी आर नॉट रियली एबल टू कनेक्ट विद पीपल. हम जब किसी के साथ विदाउट फोन्स बैठते हैं, वी माइट नॉट हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू टॉक ऑन एक्सेप्ट सोशल मीडिया, कि तुमने ये देखा कि यहाँ क्या हो रहा है या फिर इस पर्सन के साथ क्या चल रहा है. So there is an emotional distance and disconnection from the loved ones, even though we are fully connected on social media. There is social comparison and isolation as well, कि हम खुद को उस परफेक्ट इमेज से कंपेयर करना चाह रहे हैं. कि अगर इस फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे मेरे फ्रेंड की परफेक्ट फोटो डली है, आई नीड टू compete with that in my real life as well. I need to compete with the milestones जो others achieve कर रहे हैं. भली, because in this real world every individual person has different kind of resources, different type of environment, different type of capacities as a person. So हम खुद सबको मतलब हम एक दूसरे को compare कैसे कर सकते हैं? We are all individuals and we should be celebrating our individuality. These feelings, सो कंपैरिजन से हमारे पास फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी आता है, लोनलीनेस आती है और एनवी आता है, which are feelings that we should be focusing on, reflecting upon to understand ourselves, but in turn वो हमको लोगों से दूर कर रही हैं. And there is also decreased sense of empathy. हम जब लोगों के साथ बैठते थे, we used to have deep conversations. Now we are no longer
really good with understanding non-verbal cues. We are not good with understanding each other at a very deep level. हम superficial levels पे मे भी सबसे connect कर पा रहे हैं, but what about the deep connections जो हमारी life को actually meaning देते हैं, हमारा एक source of happiness and support होते हैं. So we are missing out on that as well. मैम ने आप सभी को बताया कि किस तरीके से डिजिटल की दुनिया हम सभी को अपने लव्ड वन से किस तरीके से दूर कर रही है, एंड ये भी है काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ, क्योंकि आजकल अगर हम बात करें टीनेजर्स में एंड एडोलसेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि हम इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है अपना स्पेंड करते हैं, एंड रेदर देन कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा कर के उनके सर्कल में जा कर के फेस टू फेस हम उनसे बातें करें. एंड ये क्या होता है, इसका रिजल्ट ये भी आता है कि हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, एंड हमारा माइंड भी है काफ़ी चीज़ें सीखने पर और साथ ही सोचने पर भी है वो नहीं सोच पाता है. काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें हमें इस तरीके से ये नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं माइंड में. सो आप सभी ने देखा व्यूअर्स कि किस तरीके से हमें डिजिटल की दुनिया अपने लोगों से अलग कर रही है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है. हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए ही सोशल मीडिया या फिर डिजिटल की दुनिया में खोए रहना चाहिए. इसी के साथ अगला जो मेरा सवाल है वो सारिका मैम से है. एंड मैम, जिस तरीके से अभी हमने बात की है, साइंस पर बात कर ली है कि डिजिटल डिटॉक्स के डिजिटल दुनिया में किस तरीके से ये हमें अपने से अलग कर रहा है, लोगों से अलग कर रहा है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि व्हाट इज इट अबाउट द डिजिटल और द साइबर स्पेस दैट मेक्स पीपल यूजिंग इट मोर एंड मोर. तो क्या रीज़न है जो हम इसकी आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हम इन्हीं चीज़ों पर, ऑनलाइन चीज़ों पर, डिजिटल की चीज़ों पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो क्या रीज़न है इसका? सो मैं आपसे वो जानना चाहूँगी. Yes, ma'am. यस सारिका मैम. May I? यस मैम. Ma'am, that's a very good question because जैसे कि मेरे पहले स्पीकर्स ने ये बात कही कि हमें बहुत महसूस हो रहा है it's high time and it's affecting our physical health, mental health, emotional health. बट फिर भी हम अपनी कुछ प्रैक्टिसेस जो है डेली रूटीन में जो हैबिट्स हैं उनको क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्यों सबसे पहले उठ के हम अपना फोन ही क्यों चेक करते हैं? So there are certain, you can say, psychological attributes of the cyberspace. I mean, cyberspace is like the time that we spend on internet or social media. So we are actually giving one self of ourselves, one part of ourselves. It's a presence that we create in the virtual world or the cyber world. So उसका हमारी साइकी पे क्या इफेक्ट होता है या हमें किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, क्या हम महसूस कर रहे होते हैं उस वक्त, वो मैं यहाँ थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगी. द फर्स्ट थिंग इज अ सेंस ऑफ इमर्शन. when we are doing anything online, there is a complete there is a complete transformation, if not complete, then at least a very big transformation of the physical self into the surrounding which is there. Like when we are playing online games, there are many online games जिसमें हमें कुछ अवतार या किसी एक पर्टिकुलर रोल को प्ले करना पड़ता है, तो वो एक डिस्कनेक्ट सा क्रिएट कर देता है कि हमारा जो रियल सेल्फ है उसे एक डिस्कनेक्ट क्रिएट कर देता है, एंड वी फील कंप्लीटली इमर्स्ड. We feel that we are we are into a different world. So that sense of immersion to a certain extent leads to the merging of action and awareness. इसका मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ ये देना चाहूंगी कि हम जैसे हम किसी से फीडबैक सुनते हैं कि ये सीरीज अच्छी है या ये पॉडकास्ट अच्छी है. So out of curiosity, we open that link and then we watch that episode. But then after some time, it appears that the action, the doer and the doing becomes the same. So there's a merging of action awareness, and that leads to the states like binge watching of net on Netflix, and even adults जिनको दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाना है, वर्क प्लेस पे जाना है, वो भी इस टेम्पटेशन को ओवरकम नहीं कर पाते हैं at times. So this is one attribute. Then see, in the real world हम कोई भी एक्शन जब कर रहे होते हैं, जब हम कुछ भी
किसी भी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं या कोई रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, हम सोचते हैं. देयर इज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व देयर. सेल्फ कॉन्शियसनेस, it's like a inner mirror which helps us to reflect what am I doing, why I'm doing, what will be the impact of my action on others. But we reflect upon these kind of thoughts. But in the digital world or in the cyberspace, this is lost. There is a loss of reflective self-consciousness. And also distortion of temporal experience. It's the loss of sense of time. हम शायद कभी कुछ एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देखने के लिए या ईमेल चेक करने के लिए या ईमेल का रिस्पॉन्स देने के लिए शायद हमने फोन उठाया हो, और उसके बाद we do not realize that how much time we have spent on that platform and followed by other platforms on the digital world. So we get to experience the time sense is lost. And अगर हमें कोई गोल अचीव करना है इन द रियल लाइफ, उसमें बहुत प्लानिंग की जरूरत होती है, बहुत हार्डवर्क की जरूरत होती है. बट जब हम कुछ ऐसी डिजिटल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जिसमें हमें किसी मैसेज का रिप्लाई अच्छे से लिखना है, या कोई एक समझ लीजिए गेम अगर हम खेल रहे हैं, तो उसमें देर आर लेवल्स. सो दे गिव अस द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट विच आर वेरी रिवॉर्डिंग. सो वो इमीडिएट intrinsic reward की जो feeling आ जाती है, that also keeps us glued to these internet and online gaming platforms and sites. So अगर मैं ये कहूँ कि हमारा real world में और virtual world में एक अगर हम अपना खुद का behavior भी analyze करने की कोशिश करें, तो हम ये महसूस करेंगे कि that we feel more open, more comfortable at times sharing certain things on digital platform as compared to the real face-to-face interactions. इसके भी कई reasons होते हैं, जैसे इस तरह के इफेक्ट को ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट कहा गया है. इसके कुछ reasons मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी कि anybody can create a email, anybody can create a profile on the digital world, and जरूरी नहीं है कि वो सही हो, उनको सारी right information देनी हो. So जो anonymity का जो factor होता है, that also creates us glued to and we feel more comfortable in working in the cyberspace, especially for people who have low self-esteem and low confidence, and जिनमें assertiveness skills की कमी है. For such personality traits, working in the cyberspace becomes little disinhibiting. हालांकि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, बट हम बात कर रहे हैं कि हम चाह के भी ये हैबिट्स क्यों नहीं छोड़ पाते हैं. तो इसका दिस इज द बिनाइन इफेक्ट, दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ disinhibition that we experience in the cyber space. अब इनको ओवरकम करने के लिए हमें एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस बार बार खुद से पूछने चाहिए, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस पूछते रहने चाहिए. अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो मैंने कुछ समराइज किए हैं पॉइंट्स. जैसे वी ऑल सी टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. वी कैन नॉट से दैट फॉर seeing the negative impact of technology on us, we can completely leave it. Yes, time to time detox and time to time disconnect is required so that we can use it for the purpose it was made. It is made to help us. It is supposed to work for us. It is supposed to assist us. So we need to look within and ask these questions, that during what computer-based activities or online activities that I experience a sense of flow and immersion. कब मैं वो पूरी तरीके से उसमें इमर्स हो जाती हूँ और मैं खुद को भूल जाती हूँ, या मैं रियल लाइफ में जो मेरा स्केड्यूल है वो अफेक्ट होने लगता है, या जो मेरा रियल लाइफ में जो शायद मैं बिहेवियर नहीं करती वो मैं ऑनलाइन करी. इस तरह के क्वेश्चंस हमको खुद से पूछते रहना चाहिए. एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जो कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं. हु एम आई, ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए. और जब ये क्वेश्चन हम खुद से पूछे, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी दैट वी शुड डू इट एज अ जर्नलिंग एक्टिविटी वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली. अपने बारे में 5 चीजें लिखें और फिर आप अपने ये आपके रियल वर्ल्ड की चीजें होंगी. और आप जब अपने ऑनलाइन प्रोफाइल्स में को ढूंढें, उनमें एक्सप्लोर करें कि आपने जो हु एम आई के आंसर में जो 5 या 6 क्वालिटीज लिखी हैं,
या अपने 5 या 6 ओपिनियंस लिखे हैं, क्या वो आपकी डिजिटल सेल्फ में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? बट इफ देयर इज अ मैच, वेल एंड गुड, देयर इज अ बैलेंस. But if there is a lot of disconnect, the answer varies a lot, then there is a red flag that we are getting affected by the technology the way we don't want. Then अगर हम अपने प्राइमरी सोशल सपोर्ट की बात करें, जैसे सौम्या मैम ने भी कहा कि हम सब अपने लोगों, हम अपनी फैमिली से, फ्रेंड से कनेक्टेड तो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, लेकिन एक्चुअली क्या हम अवेलेबल हैं, क्या हम उनके प्राइमरी सोशल सपोर्ट नेटवर्क में हैं? और ऐसे ही एक क्वेश्चन हमें खुद से भी पूछना चाहिए. आई मे हैव thousands and lakhs of followers on different social media platforms, but if I'm sick, who is that one person who's going to send me a lunch or call me or visit me? So अगर आपका primary social support affect हो रहा है because of spending a lot of time there and not investing your time and efforts into the real world connections, तो फिर ये बिल्कुल बहुत बड़ा इंडिकेशन हो जाएगा ये डिस्कनेक्ट या डिजिटल डिटॉक्स को स्टार्ट करने का. ऐसे ही हम जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉमन हम देख रहे हैं कि देयर इज द थिन लाइन बिटवीन अर्लियर ये ऑफिस आवर्स हैं और इसके बाद हम दिस इज माय पर्सनल टाइम, दिस इज माय फैमिली टाइम, वो लाइन कहीं ब्लर हो गई है और हम घर पे भी ईमेल चेक करने के नाम पे फोन उठाते हैं या इंपॉर्टेंट मैसेजेस चेक करने के नाम पे फोन उठाते हैं, एंड देन वी एक्चुअली स्पॉइल आवर ओन पर्सनल फैमिली टाइम एंड द टाइम. स्पेशली सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट अगर कोई होता है तो वो बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं इस टाइम में. So we need to ask this question, am I cyber slacking? और वर्क प्लेस पे भी ये देखा गया है लॉन्ग आवर्स कि भाई 3 to 5 या 5 to 7 हम वर्किंग आवर्स हमारे एक्सटेंड हो गए हैं एंड वी हैव लॉट ऑफ वर्क, बट आर वी रियली प्रोडक्टिव देयर? क्या हम रील्स तो नहीं देख रहे हैं? क्या हम अपनी ईमेल्स का रिप्लाई करने के बाद हम दूसरी एक्टिविटीज ऑनलाइन में तो इन्वॉल्व नहीं है? दैट इज कॉल्ड साइबर स्लैकिंग. सो वो भी हमें देखने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है. सो ये क्वेश्चंस अगर हम बार बार खुद से पूछते रहें तो हमें अपने आप को जवाब मिल जाएगा कि डिजिटल डिटॉक्स का टाइम आ गया है या कितना फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है हमें टेक्नोलॉजी से. एग्जैक्टली सारिका मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, थैंक यू सो मच. एंड इसी के साथ जो है, जैसे कि आप सभी ने जाना, मैम ने यहाँ पर ये चीज़ें भी बताई कि किस तरीके से आप अपने आप को अकेला महसूस कराते हैं डिजिटल की दुनिया में खो करके, और इसीलिए टाइम टाइम पर डिजिटल डिटॉक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है. एंड यहाँ पर ये भी बहुत सारी चीज़ें हमने जानी कि आजकल लास्ट में मैम ने जो कहा कि ऑफिस में आप टाइम तो स्पेंड करते हैं या फिर अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम आप अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, रील्स में लगे रहते हैं, तो उसमें हम प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. ये भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव साइड्स हैं जो हमें डिजिटल साइड के दिख सकते हैं. इसके बाद इसी के साथ जो है मेरा अगला सवाल जो है यहाँ पर क्वेश्चन सृष्टि मैम से रहने वाला है. अभी हमने बहुत सारे इस पर चर्चा भी की है, बातचीत भी की है कि डिजिटल डिटॉक्स को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं. सो मैम, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है सृष्टि मैम कि कैन यू सजेस्ट वेज इन विच चिल्ड्रन कैन इफेक्टिवली मास्टर द आर्ट ऑफ digital detox? So ma'am, could you please elaborate this to our viewers? Sure, ma'am. Yes ma'am. All right. So, in today's era, if we see, digital devices have actually become an inevitable part of our own being. And these have fundamentally reshaped our way of living. And their influence, especially on children, is like a double-edged sword, because though it has profound positive effects, as ma'am has already mentioned, but the fact that it's a constant source of distraction, this cannot be ignored. So before we discuss the amicable ways to digital detox, let us first accept that the pervasive presence of these digital devices, which is deeply woven into the fabric of our daily lives, and there are no two thoughts about it. More so, the need to unplug, I'm using the word unplug intentionally over here, has become more pressing today, because this digital world is actually relentlessly pulling our attention, and the constant gratification and unlimited feed of information
These are actually dictating our lives. This makes us, in some sense, trapped in a never ending rat race, leaving us mentally exhausted and emotionally drained, and obviously disconnected from the world around us, as has already been discussed. So now, whenever the idea of digital detox comes, people are often overwhelmed because they consider it to be synonymous with completely disconnecting from all technology all at once. But that's not exactly the case. So instead of stressing over these issues, let us not overthink the process and get anxious and stressed about it, because digital detox, when we say, it is basically a way to reclaim our own control back on our lives by focusing on the present, slowly taking one step at a time, and giving ourselves the flexibility to adapt. We are going to find the right balance that works for each one of us. So, this way, basically, building brick by brick digital detox wouldn't appear such a daunting task. So, let us quickly discuss a few practical ways to achieve digital detox. So to begin with, let's start with carving out screen-free family time. This is something actually very, very precious today, because it takes a great deal of determination to step away from the allure of digital media and truly reconnect with our loved ones, like engaging in discussions, having a morning or evening walk, which while having conversations within the family, also like engaging in activities, some board games, cooking sessions together, going on outdoor picnics, having art and craft projects, even engaging in volunteering activities where basically face-to-face interaction is there. So these activities are basically giving children the opportunity to develop social bonding, which is missing in the present youth today. Enjoying, more importantly, enjoying screen-free lunch and dinner together with children, so that they are able to narrate and interact with their parents. And these interactions can be deeply enriching. Also, sharing of family history stories. These are going to help children to reconnect with their roots. So basically, embracing these beautiful moments, though they may seem small and not so significant to most of the people, but these are actually imprinted on the minds of young children. And these threads of affection weave a very strong tapestry of memories and create and nurture a sense of togetherness, which technology often undermines. Also, I think embarking on digital detox journey, when we are talking about this, reconnecting with nature is one of the best ways, because nature is the ultimate healer, the source of all our energies. And shedding off the constant distractions of screen and reconnecting with nature allows us to get back to our basics and rediscover life's beauty. Also, as they say, nature is the best medicine because it gives us the space to revitalize, restore, and rejuvenate our own energies. This can be very simple, strolling through the forest, or maybe loitering around the beach, or even as simple as sitting beneath the shade of a tree. Nature provides us with the opportunity to nurture both mind and body. So basically, by unplugging and, in a sense, walking off the guard of these constant notifications, we allow ourselves to fully appreciate and experience the digital world without a real world, without any digital interference. So this way we are not only reconnected to our own selves, but with also nature. And this way we can gain a sense of clarity and peace in a world which is actually moving at a skyrocketing speed today. Yes, Exactly. ma'am. Right, ma'am. Srishti, ma'am, you explained very well. And your viewers, here we got to know more about the ways that how we can detox, digital detox from ourselves. And next, like this, we have also from question like, I'll ask another question to Kalpana, ma'am. And ma'am, my next question will be from you. And that is, what are the challenges, if we talk about the challenges
regarding the students. So, what are the challenges faced by students while digital detoxing? So, ma'am, could you please elaborate us this question? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। एक्चुअली अभी जो बात हो रही थी, सारिका मैम ने बात की, सृष्टि मैम ने बात की, सौम्या मैम ने बताया, डिजिटल डिटॉक्सिंग इज वेरी नेसेसरी, नो डाउट, फॉर स्टूडेंट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसका सोशल रिलेशंस, हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को डिटॉक्स करें, डिजिटली डिटॉक्स करें, और वो खुद से जुड़े, समाज से जुड़े, घर से जुड़े, जो वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा है उससे दूर रहे। और Madam, if you will go on slide number 19, no issue. Yes. Okay. Okay. So why this digital detox is necessary, as everyone has discussed about it, for mental health. Why mental health? अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम कम होगा तो उसको स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो डिजिटली इन्वॉल्व होता है, उस नहीं रहे हैं, 1-1 बजे तक कुछ गेम खेल रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, विद द स्क्रीन टाइम। तो कैसे इस स्क्रीन टाइम को अगर हम कम करने की कोशिश करते हैं और बच्चा इसमें, हम इसमें सक्सेसफुल हो गए, का स्क्रीन टाइम हम कम कर पा रहे हैं, वो रेस्ट बेटर कर पाएगा, नींद अच्छी ले पाएगा। बच्चा बैठा हुआ है, उसका फिजिकल पोस्चर खराब हो रहा है, आप देखेंगे बच्चे सीधे नहीं चल रहे हैं, झुक रहे हैं, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी को एनकरेज करना है। डिजिटल डिटॉक्स का एक और जो हमारा पर्पस है वो ये कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, बच्चा उठे, खेले, कम्युनिकेट करे। अब नेक्स्ट मैम। Okay. नेक्स्ट नहीं, सॉरी, पहले, थोड़ा पहले, हाँ, 4th नंबर और 3rd नंबर यू प्लीज। 4th और पहले, हाँ, 3rd, फॉर सोशल कनेक्शन ऑल्सो। हमारा बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में जो रह रहा है, उसकी वजह से उसके सोशल कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, वो आपस में भाई बहन बात नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, पेरेंट्स से नहीं है, बच्चा ना बाहर निकल रहा है ना खेल रहा है। अगर हम डिजिटली डिटॉक्स की बात करते हैं तो बच्चा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होगा, उसका क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा, फैमिली से इंटरैक्ट करेगा, एम्पैथी बिल्डअप होगी, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होगी, student will be able to communicate, he will be able to work in a team, he will know how to negotiate, he will be able to adapt the situations, and he will be able to manage the conflict, and he will be affirm actually. Next. तो जहां हम बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ की, सोशल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, उसके साथ हम बात कर रहे हैं सेल्फ की। बच्चा जब डिजिटली वर्ल्ड में रहता है तो उसका सेल्फ स्टीम वो देखता है, जैसा सारिका मैम ने भी बात की कि जब बच्चा सोशल मीडिया पे कुछ देखता है वो कंपेयर करता है। जब हम उसे डिजिटल डिटॉक्स की बात करेंगे, हमें उसके साथ होना होगा, कैसे वो इन अनहेल्दी कंपैरिजन से दूर रहे, वो खुद को जाने, खुद को टाइम दे, और जो इनएडिक्वेसी की फीलिंग है, उसके पेरेंट्स को, उसके स्कूल को, सोसाइटी को उसे ये बताना है, यू आर नॉट अलोन, वी आर विथ यू, यू डू नॉट नीड टू बी लिव इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, दैट इज नॉट रियल, दैट इज फेक, एज सौम्या मैम सेड। तो इट इज वेरी ट्रू, हमें उसे उसके लिए समय देना होगा, and it promotes mindfulness. If we will be able to promote digital detox, हमारा बच्चा mindful रहे, that is present moment में हमें उसे रहना सिखाना है, real world experience उसे देना है। So a break from screen helps children build self confidence and emotional resilience. That is really missing from their life. We need to work on it, how we can make them digitally detox. Next, ma'am. So for academic and skill development, this is one of the important aspect, because हम कह रहे हैं, जैसे सौम्या मैम ने कहा था कि क्या साइन है, एक साइन ये है कि बच्चा जब डिजिटली इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कम होता का मिसयूज कर रहा है, स्क्रीन टाइम जो उसका है, अगर एकेडमिकली यूज नहीं हो पा रहा है, मिसयूज हो रहा है, तो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कम हो रहा है। और स्किल डेवलपमेंट, जो हमें उसके डिस्ट्रैक्शन कम करने हैं,
क्यों करना है? ताकि वो फोकस कर पाए पढ़ाई पे और क्रिएटिविटी, इनोवेटिव बन सके, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इन्वॉल्व हो सके, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर सके, उसको समय मिलेगा कुछ नई स्किल्स सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि डिटॉक्स उसे अलाउ करेगा कि वो अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कर पाए। अगर उसे स्पोर्ट्स में रुचि है उसमें करे, पढ़ाई में रुचि है उसमें करे, आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, जिसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा है वो उसमें इन्वॉल्व होगा, अगर हम उसे डिटॉक्स करने की प्रैक्टिस करवाते हैं। नेक्स्ट, फॉर हेल्दी डिजिटल हैबिट्स, एक्चुअली एप्किन डिजिटल हेल्थ पिरामिड, जिसको एप्किन ने दिया था, वो ये कहते हैं कि अगर हम डिजिटल हैबिट्स डेवलप करते हैं बच्चों में, इस तरह से एक बैलेंस डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी में और रियल लाइफ में, हमें पूरे दिन को बांटना होगा कि कितने घंटे आपको क्या करने की परमिशन दी जा रही है, डिजिटल वर्ल्ड में रहने की परमिशन दी जा रही है। अगर हम वो डिवाइड करते हैं डिटॉक्स करने के लिए, अचानक से हम उसे कंप्लीट डिटॉक्स नहीं करेंगे। वी हैव टू डिटॉक्स देम इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट पीरियड को हम लें कि 2 घंटे आप ये करेंगे, 4 घंटे आप ये करेंगे, 1 घंटा आप गेम खेलेंगे। तो इस तरह से आपको डिटॉक्स करने के लिए कुछ शेड्यूल बनाना होगा, जिसे हम एप्किन डिजिटल हेल्थ पिरामिड से जान सकते हैं। जो कि डिजिटल डिटॉक्स हमें क्यों करना है, वो एनकरेज करे री इवैल्यूएट करने के लिए कि हमें टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करना है और कैसे हेल्दी हैबिट्स हम फॉस्टर कर सकते हैं बच्चों में, जिससे उन्हें ये समझ में आए मुझे कितना यूज करना है, कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। तो डिजिटल डिटॉक्स ऑल्सो हेल्प्स इन सेल्फ रिलायंस, दैट इज रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। अगर हम डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके अगेंस्ट में हमें उनसे क्या चाहिए, हमें उन्हें इस तरह से बूस्ट करना है, हमें उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देनी है, हमें उन्हें इन्वॉल्व करना है एक्टिवली, जिससे उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो, या हम कहें 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप हो। अगर हम डिजिटली डिटॉक्स सच में उन्हें करना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और जो हम चाह रहे थे वो डिजिटली डिटॉक्स हो गया लेकिन उसे बोर लग रहा है, या कुछ इस तरह की चुनौतियां भी हमारे सामने आएंगी। नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट प्लीज। जब हम इतनी बात कर रहे हैं हमें सबने की हम डिजिटली डिटॉक्स चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो फुली डोमिनेटेड बाय डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें से उसे बाहर लेके आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी भी अपनी कुछ जरूरतें हैं, कुछ चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं। जब हमने कोशिश की कि बच्चों को कैसे डिजिटली डिटॉक्स करें, क्या एफर्ट्स लगाएं, सृष्टि मैडम ने अभी कुछ तरीके भी बताए, लेकिन इन एफर्ट्स को करते टाइम ये देखा गया कि बहुत चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चुनौती है वो ये कि हर स्कूल, किसी भी क्लास में बच्चा हो, 6 to 10th की बात हम अगर कर रहे हैं, एडोलसेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चा उतना मेच्योर नहीं है, तो हमें ये देखा गया कि पहली चुनौती तो उसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की ही है, क्योंकि स्कूल जो टास्क दे रहे हैं वो टास्क इस तरह के हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कहीं ना कहीं है, चाहे उसे होमवर्क करना है, उसे ऑनलाइन क्लास करना है, उसे स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है, तो हम उसे टोटली हटा भी नहीं सकते हैं। तो आपको जो हमने एटकिंस मॉडल की बात की है उससे अगर हम लेते हैं तो वो टाइम आवर्स हमें डिफाइन करने होंगे। तो पहली चुनौती जो हमें दिखी वो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की ही है कि बच्चा इस पे डिपेंड है, तो हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो चुनौती है एजुकेशन में ही, लैक ऑफ ऑफलाइन रिसोर्सेस, क्योंकि लिमिटेड एक्सेस है हमारे पास रिसोर्सेस का ऑफलाइन मोड में, इसलिए ये बहुत मुश्किल है बच्चों से कहना कि यू हैव टू स्पेंड टाइम विदाउट स्क्रीन। वी नीड टू शेड्यूल देयर स्क्रीन टाइम एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, लिमिटेड सेल्फ कंट्रोल। हमने कह तो दिया कि आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, आपको टीवी नहीं देखना है, आपको गेम नहीं खेलना है, लेकिन बच्चा इसमें रेजिस्टेंस शो करता है कि नहीं, मुझे गेम खेलना है, मुझे टीवी देखना है, या जो भी कुछ उसे मोबाइल पे या टेक्नोलॉजी को यूज करके करना है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन दे आर सपोज टू डिटॉक्स। उनका जो कोशिश ये रहेगी कि नहीं, हमें मोबाइल चाहिए, क्योंकि हमने उसे इतना एडिक्ट कर दिया है
वी आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, और अब हम चाह रहे हैं कि हम उसमें से उसे बाहर लेके आए। तो सिचुएशन क्रिएट भी हमने की है, तो उसको एलिमिनेट भी, रिड्यूस भी हमें ही करना होगा, धीरे धीरे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक घटना यहाँ पे, एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी। एक छोटा बच्चा मोबाइल पे खेल रहा था। उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कैसे डिटॉक्स करें। तो फादर ने मदर को एक बुक दिया, फादर ने एक बुक लिया और उसके आजू-बाजू में बैठ के वो किताब पढ़ने लगे। बच्चा थोड़ी देर तो मोबाइल पे खेलता रहा, फिर उसे दिखा कि अच्छा, मेरे पेरेंट्स तो किताब पढ़ रहे हैं, तो उसने मोबाइल साइड में रखा और किताब लेके आया और वो भी उनके साथ अपना बुक खोल के पढ़ने लगा। व्हाट डज़ इट इंडिकेट कि जब बच्चा हमारे रिफ्लेक्शन से ही सीख रहा है, तो पहले हमें वो चीज़ प्रैक्टिस करनी होगी, हमें अपने इसमें लेके आनी होगी, तब हम बच्चे से चाहेंगे, बच्चा चाहेगा कि हम जो चाह रहे हैं वो करें। If we are doing that and we are expecting from them, it is not possible. First, we have to manage our time. We need to manage our screen time. Then only we can expect from our student, from our child to get digitally detox. सेल्फ कंट्रोल की जहाँ बात आई, वहां पे मैनेजिंग टाइम जो अभी मैं बात कर रही थी, कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है हमारे पास। बच्चे को डिटॉक्स तो कर दिया, लेकिन जो उसके पास अब टाइम आ गया है, उस टाइम को वो कैसे यूज करे, कहाँ यूज करे, तो उसके लिए हमें उसको टाइम देना होगा। स्कूल टीचर्स को उसे टाइम देना होगा, उसे गाइड करना होगा, उसे समझना होगा, उसका इंटरेस्ट जानना होगा। देन ओनली वी विल बी एबल टू मैनेज देयर टाइम्स ड्यूरिंग डिटॉक्सिंग और इन द डिटॉक्स पीरियड। नेक्स्ट, पीयर प्रेशर। हम चाह तो रहे हैं बच्चा डिटॉक्स हो जाए, डिजिटली डिटॉक्स हो जाए, लेकिन उसके ऊपर एक प्रेशर है कि उसके दोस्त, उसके आसपास जो भी उसका ग्रुप है, वो चाह रहे हैं कि वो उससे जुड़े रहे। और सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है, उसके अंदर भी एक इच्छा जागरूक रहेगी कि मैं, हो क्या रहा है। आप खुद को देखिए, अगर हम 2 घंटे फोन यूज नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया, ऐसा क्या हो रहा होगा, स्टेटस पे किसने क्या डाला। जैसे सारिका मैम ने कहा कि थोड़ी देर हम फोन लेते हैं मेल और मैसेज चेक करने के लिए, लेकिन वो हमारा कितना टाइम किल कर देता है जब हम टाइम 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे कई बार चले जाते हैं। दूसरा पीयर प्रेशर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो अपडेट मेरा मिसिंग हो जाए, कोई इंटरेक्शन मेरी दोस्त के साथ मिसिंग हो जाए और फिर मुझे लगेगा कि क्या हुआ था, क्या कहा होगा। तो फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन एंड एंजाइटी, ये जो एंजाइटी है, ये बच्चे को प्रेशर में डालेगी, और वो जो हम चाह रहे थे कि वो टाइम को यूज करे, यूटिलाइज करे, वो उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दैट एपकिन पिरामिड, कि हमें कितना टाइम किस चीज को देना है, स्टार्टिंग हमें इसी से करनी होगी। नेक्स्ट, over reliance on entertainment. These days, what we observed as a teacher or as a family member, I can say what I observed at home or in the school, students are putting condition. I will study for 2 hours if you will give me mobile for half an hour. I will eat food, I will take meal only when you will give mobile for 2 hours. Like that, they are putting condition. They are totally dependent on the digital games or whatever they want to use in that. So many students really, they are rely on video games or mobile games for their recreation, and they are putting conditions. Then only they will eat or they will study. So this is one of the challenge we are facing actually. A lack of offline hobbies. बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो तो सालों से इसी में आ रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड से। बच्चा छोटा है तब से वो मोबाइल में है, मोबाइल में खेल रहा है, मोबाइल में देख रहा है, एक ही जगह बैठा हुआ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो उसे कैसे अब हम डिटॉक्स करवाएं, क्योंकि जब हम डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, तो उसके पास कोई ऑफलाइन हॉबी ही नहीं है। मैं अपने घर में बच्चों को देख रही हूँ, एक जगह बैठे हैं तो वो घंटों एक जगह ही बैठे हुए हैं, वो उठ ही नहीं रहे हैं। बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उनके साथ भी वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें बोर लगता है, रेस्टलेस लगता है इस डिटॉक्स पीरियड में। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चा अगर बोर हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, जिद कर रहा है, तो हम कैसे उसे, हम तो चाह रहे हैं डिटॉक्स हो, लेकिन हम कैसे उसे आगे लेके आए कि हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। तो बच्चों को टाइम देके, उनसे बात करके, कम्युनिकेट करके, उनका इंटरेस्ट जान के हमें प्लान करना होगा इस डिजिटली डिटॉक्स पीरियड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसके में मैं ये जोड़ना चाहूंगी, जैसे
स्कूल में अभी बैगलेस डेज शुरू हुए हैं। एवरी सैटरडे एवरी स्कूल नीड टू सेलिब्रेट बैगलेस डेज। द पर्पस ऑफ दिस बैगलेस डे इज दिस ओनली कि बच्चा आए, खुद अपनी बात रखे, खेले, जो उसको पसंद है वो करे, और अब आगे बढ़े। पढ़ाई के अलावा हमें उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है, तो डिजिटल डिटॉक्स का जो पीरियड है, हमें उसको इसी तरह से यूज करना होगा। अगर घर में डिटॉक्स का कुछ टाइम है और तो उसे उस तरह पेरेंट्स यूटिलाइज करें, अगर स्कूल में हमने कुछ उन्हें टाइम दिया है उसे वहां पे इस तरह यूज करें। जैसा हम अभी सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसने डिजिटल डिटॉक्स को प्रमोट किया है या इनिशिएट किया है कि 16 साल तक के बच्चे डिजिटल डिटॉक्स को फॉलो करेंगे, और करना भी है यूज तो वो अपने पेरेंट्स की परमिशन से उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट, जो अभी बात हुई पेरेंटल एंड एकेडमिक एक्सपेक्टेशन, सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी भूमिका पेरेंट्स की है सबसे पहले, फिर एकेडमिशियंस की है, टीचर्स की है, स्कूल की है। तो जो चुनौती यहाँ पे आई, हमने बच्चों को तो जोड़ दिया, डिस्कनेक्ट करने की बात कर दी, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। इसलिए बच्चे के लिए और मुश्किल है कि कैसे हम कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करें। तो इतना आसान नहीं है उसमें से बाहर आना। हम उसका कुछ पार्ट यूज कर सकते हैं, कुछ पार्ट हम उसे दे सकते हैं, पर हम ये नहीं कह पाएंगे कंप्लीटली डिटॉक्स हो पाएगा। ना तो इस समय की ये मांग है और ना ही ये इसकी पूरा कर पाएगा। तो जिस तरह के वर्ल्ड में अभी हम हैं, तो डिटॉक्स जरूरी है लेकिन विद इन द लिमिट। एजुकेशनल एप्स, स्कूल्स एनकरेज करते हैं कई लर्निंग ऐप यूज करने के लिए। हम इवन खुद कई सिमुलेशंस उन्हें बोलते हैं याद करने के लिए। तो आपको कैसे लर्निंग एप्स को यूज करना है, कैसे वो एक लाइन है बीच में प्रोडक्टिव और रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम की, उसके बीच की लाइन बच्चे को समझाना होगा कि जो भी आप स्क्रीन टाइम ले रहे हैं वो इतना हो कि आपके लिए वो यूजफुल हो, आप उसका मिसयूज ना करें, और आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे, आपके सोशल वेलबीइंग पे इसका प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट, इमोशनल डिपेंडेंसी। जब हम वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं, बहुत खुश करते हैं अपने आप को क्योंकि हम वो देख रहे हैं जो हमें पसंद है, हम उससे बात कर रहे हैं जिससे बात करके हमें अच्छा लग रहा है, कोई हमें नेगेटिव नहीं कुछ कह रहा है, तो स्ट्रेस फ्री हमें लगता है। लेकिन जो चुनौती है, जो इमोशनल स्केप, बच्चा दूर हो रहा है रियल वर्ल्ड से, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। हो सकता है जब हम उससे डिजिटल वर्ल्ड से दूर करें तो वो और स्ट्रेस में आ जाए, वो अकेला फील करे, वो बोर हो जाए, उसको बोरिंग लगे। तो कैसे हम इस चुनौती को पूरा करेंगे, क्योंकि वो कई समय से इस वर्चुअल वर्ल्ड में जिसमें वो खुश था, उसकी किसी से लड़ाई नहीं हो रही है, उसमें सबसे वो वर्चुअली बात कर रहा है। घर में जब उसको डिटॉक्स पीरियड में हम बात कर रहे हैं तो उसको डांट भी पड़ रही है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप खेल नहीं रहे हो, आपको जिस खाना नहीं खा रहे हो। लेकिन जितने टाइम वो मोबाइल पे है, आप उसका, अगर आप उसका फेस देखेंगे, उसके एक्सप्रेशन देखेंगे, वो गेम जब खेल रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी, इतना खुश जैसे कि पता नहीं क्या मिल गया है। लेकिन जैसे ही हम डिटॉक्स की बात करेंगे, उनको स्ट्रेस फील होगा क्योंकि उन्हें आदत हो गई है डिजिटल वर्ल्ड में रहने की, उन्हें अकेलापन फील होगा क्योंकि उन्हें उस तरह से कम्युनिकेशन अभी सीखना होगा, कैसे सबसे बात करें। बोर्डम लगेगा तो कैसे हम उसे करें, कि इसके लिए जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें प्लानिंग करनी होगी, हमें प्रिपेयर होना होगा, इस तरह से शेड्यूल हो कि बच्चे को बोर्डम ना लगे, बच्चे को अकेला न लगे, बच्चे को स्ट्रेस ना फील हो, और वो इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करे एक्टिविटीज में। तो इसके लिए हमें बहुत सोच समझ के एक्टिविटीज प्लान करनी होगी, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे स्कूल लेवल पे, या हम कहें होम लेवल पे। तो एंजाइटी एंड विड्रॉल सिम्टम्स, जो अभी मैं कह रही थी, बच्चा इरिटेट होगा, रेस्टलेस फील करेगा, फ्रस्ट्रेट होगा जब हम उसे स्क्रीन टाइम कम करने के लिए कहेंगे, जब हम उससे मोबाइल हटाने की बात करेंगे, नो डाउट ही विल गेट इरिटेट एंड फील रेस्टलेस। नेक्स्ट,
structured schedule centered on devices. जो स्कूल असाइनमेंट हमें दिया जा रहा है, जो हमें घर पर करना है, होमवर्क सबमिशन हमें करना है, वो किस फॉर्म में मांगा जा रहा है आजकल? दे आर डिजिटल, मेकिंग स्क्रीन ब्रेक्स इनकन्वीनियंट। जो हम चाह रहे हैं डिटॉक्स करना, क्योंकि स्कूल के जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन सबमिशन की बात की गई। जो अच्छे स्कूल्स, बड़े स्कूल्स हैं, जहाँ पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, सिस्टम है, तो स्कूल चाहता है कि वो जो असाइनमेंट है ऑनलाइन सबमिट करें। And we are expecting them to get detox. तो again, it's a great big challenge कि हमें detox करना है, किस तरह से हम करें। Extra curricular dependence. Some extra curricular activities like coding, because from class 6 coding begins now, or the virtual clubs require prolonged device usage. Some simulations in science or in math, some softwares are there like GeoGebra है, आपका FET simulation है, आपका Tinkercad है, जिसमें बच्चे को सर्किट बनाने के लिए दिया गया है। तो what he or she can do, they need to spend time digitally so that they can complete their given task, and they want more screen time as compared as what we want them not to do. So these are the challenges which are really need to discuss कि हम कैसे इन challenges को कम करें। क्योंकि अगर हम इन challenges की लिस्ट देखें तो इसमें मैक्सिमम हमें दिख रहा है कि एजुकेशन बेस्ड बच्चों के लिए ज्यादा है। उसमें अगर वो कहीं कोई टाइम गेम के लिए या किसी तरह से ले रहा है तो we need to give that. So we really need to focus all these aspects and need to resolve the challenges accordingly. Next, parental use of technology. Parental use of technology. As we all know, now there is a trend of work from home. Our parents, parents of the children are busy with excuse me. So please. They use devices frequently, and it becomes the challenge for children to follow detox rules, because parents हमारे घर में continuous system पे है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मैक्सिमम पेरेंट्स का जो कि एमएनसीज में बाहर कहीं काम कर रहे हैं, और जब बेसिकली जो आईटी फील्ड में है, उनके पेरेंट्स तो वो लोग तो बिल्कुल इसी पे काम कर रहे हैं। अब बच्चा से देख रहा है कि दे आर बिजी विद द सिस्टम, देन हाउ कुड दे आस्क मी टू गेट डिजिटली डिटॉक्स। तो मिक्स्ड हमें मिल रहा है स्क्रीन टाइम। तो पेरेंट्स डिमांड तो कर रहे हैं कि डिजिटल प्रोफिशिएंसी एकेडमिक सक्सेस के लिए हो, तो वो क्या चाह रहे हैं कि दोनों चीजें, आपका स्क्रीन टाइम भी रहे और आपका ऑफलाइन भी रहे, दोनों का। लेकिन वही जो अमलगेशन है वो इस तरह से होना चाहिए जो कि बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट ना करे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज कि जो हम कर रहे हैं और वही हम बच्चे को नहीं करने के लिए कह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि पहले हम वो ना करें, जब हम किसी को कुछ मना करते हैं तो पहले वो हम ना करें। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है, क्वालिटेटिव यूज ऑफ स्क्रीन टाइम। क्वालिटेटिव यूज ऑफ स्क्रीन टाइम, कैसे क्वालिटी टाइम हम स्क्रीन पे यूज करें और कैसे हम क्वालिटी टाइम रियल वर्ल्ड में यूज करें, उसको वो ये वर्चुअल और रियल के बीच का फर्क अगर हम समझा पाते हैं, देन हमारा बच्चा सक्सेसफुली आगे बढ़ेगा, उसकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, overlapping digital and real world activities. No doubt these days education is going on in blended mode. Some things they are want in online mode and something they want in offline mode. So combining both, that is physical and digital learning environment, it's a very, again, a big challenge. It complicated a clear separation from technology. And the blurred boundary, there is no separate line in which we can say this is the line, either आपको offline use करना है, इधर आपको online use करना है। So it is very difficult for student to distinguish academic screen time from recreational use. तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या करें। हम बात बहुत कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे, इस तरह से करेंगे, लेकिन जब हम रियल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो टेक्नोलॉजी को हटा के खुद को देखना इतना आसान नहीं है। पर नो डाउट अगर हम एफर्ट करते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, तो बच्चों को यहाँ पे सिर्फ मोटिवेट करना है, जीरो नहीं करना है डिजिटल को। उसको मोटिवेट करना है कि वो ये समझे कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, कितना यूज करना है।
अगर ये वो बच्चा समझ जाएगा, तो हम जो ये बात कर रहे हैं, ये हम वो रिजल्ट हमें मिल जाएंगे जो हम चाह रहे हैं, जो हम अचीवमेंट देखना चाह रहे हैं हमारे बच्चे की, वो अचीव वो कर पाए। नेक्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का पहले तो कितने स्कूल्स में बात हो रही है, किस लेवल पे बात हो रही है, क्या हमारे पेरेंट्स अवेयर है इस बारे में, बच्चे के पेरेंट्स अवेयर है, क्या स्कूल अवेयर है इस बारे में? जहां पे ये अवेयरनेस नहीं है कि डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है। डिजिटल डिटॉक्स डजंट मीन कि हम इसको पूरा हटा दे लाइफ से। वी कांट डू दैट, वी कांट डू दैट। तो इस अवेयरनेस को पहले तो फैलाना होगा, बात करनी होगी कि डिजिटल डिटॉक्स का पर्पस क्या है, उससे फायदे क्या होंगे, और कैसे इसको यूज करके हम बच्चों को इस आइडिया से उनको कैसे जोड़ सकते हैं। पहले हम समझें, फिर हम बच्चे को समझाएं कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं और ये आपके लिए कहाँ फायदामंद है। तो इनसफिशिएंट गाइडेंस, जो अभी हम कह रहे हैं, टीचर्स के पास इसके लिए बात नहीं है ज्यादा करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया मुद्दा है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले अवेयरनेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें टीचर्स के लिए करनी होंगी, फिर हम वो टीचर्स हमारे बच्चों से बात करेंगे, तो तब बच्चे को समझ में आएगा हम क्या करें। या तो हम लॉ लेके आए, जैसे अभी हमने कहा ऑस्ट्रेलिया एक लॉ लेके आया है, हम लॉ लेके आएंगे तो वो अपने आप सब तक पहुंचेगा और हमें उसको फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगा। तो किस तरह से बच्चों को ऑफलाइन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, जिस ट्रेनिंग की डिजिटल डिटॉक्स की हम बात कर रहे हैं, तो टीचर्स को हमें ये भी बताना होगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, व्हाट दे नीड टू डू इन दैट टाइम पीरियड। करेंगे क्या वो उस टाइम में, बच्चों के साथ ऐसा क्या करेंगे कि हमें ये जो हमने 3 घंटे रखे हैं स्कूल के, इसमें हम बच्चे से क्या करवाएं, कैसे उसको इन्वॉल्व करें, कैसे उन्हें हम बताना होगा। आपको ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से बच्चों को आगे लेके आना होगा, ताकि वो कॉम्पिटेंसीज जो हम चाह रहे हैं बच्चे में डेवलप होना, वो डेवलप हो पाए। नेक्स्ट, तो किस तरह से, ये अभी हमने इतने चैलेंजेस जो किए, अब इनको अगर हमें करना है, तो पहला तो यही है कि कैसे बिहेवियरल चेंज हम लेके आए बच्चों में, कि बिहेवियरल चेंज जो हम चाह रहे हैं वो कैसे आएगा। तो उसके लिए टीचर्स को या पेरेंट्स को क्या करना होगा, कुछ एक्टिविटीज डिजाइन करनी होगी जिन्हें बच्चा जब पिक करे, और हम जो उसमें से उनको हटाना चाह रहे हैं, हम ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे बच्चों से जो एक्टिविटी नहीं चाहिए उसको हम हटा पाए। तो उसका फिलर क्या होगा, अभी मैं वर्ड फिलर ही यूज करूंगी, उसका फिलर क्या होगा, फिर हम धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे और इस एक्टिविटी को, इस इंटरेस्ट को उसमें डेवलप करते जाएंगे। वी नीड टू सेट सम गोल्स, उसकी विलिंगनेस के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार इस तरह से गोल डिसाइड करें, सेट करें कि वो स्क्रीन टाइम को कम करे, सोशल मीडिया से दूर होने की कोशिश करनी है हमें उसे, कि वो पूरा भी ना हटे, क्वालिटी टाइम उस पे यूज करें। कमिटमेंट रिगार्डिंग टाइम, फॉर एग्जाम्पल हम जब कह रहे हैं एक दिन के लिए अगर हम डिटॉक्स करें, एक दिन भी पॉसिबल नहीं है, कुछ घंटों के लिए हम स्टार्ट करेंगे और उसको घंटों को बढ़ाते बढ़ाते दिन, वीक और आगे हम करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा होगा, मैं जैसे फॉर एडल्ट्स की बात करूं, कई जगह कुछ शिविर लगते हैं जहां पे आपको मोबाइल अलाउ नहीं होता, आपको बिना मोबाइल के वहां 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन का वो कैंप लग रहा है, आपको वहां पे रहना है। तो ये क्या है, दिस इज अ पीरियड ऑफ डिटॉक्स। आप दुनिया से दूर हो जाते हैं, जैसे ही फोन दूर होगा आप सिर्फ अपने साथ हैं, स्वयं के साथ हैं। तो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू आवर सेल्फ ऑल्सो। तो बच्चा अपने सेल्फ को कब जानेगा, उसे कब पता चलेगा मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं कैसे स्ट्रेंथन कर सकता हूँ, मैं किस फील्ड में जाऊंगा, मैं किस सब्जेक्ट पे फोकस करूं, मैं किस स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। वो खुद को टाइम देने के लिए हम डिटॉक्स की बात कर रहे हैं। तो अब बात आई सपोर्ट की, बच्चों को किसका सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स का चाहिए, टीचर्स का चाहिए, उसके फ्रेंड्स का चाहिए। तो कैसे हम इस चेंज बिहेवियर पे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो, चेंज किस सेंस में हो उसका बिहेवियर, कि वो डिजिटली अपने स्क्रीन टाइम को कम करे। तो जो गैप है उसमें उसको सपोर्ट किसका, उसके साथ कोई होगा तब तो वो टाइम यूटिलाइज होगा, अदरवाइज वो वापस उसी में चला जाएगा जिसमें से हम उसे बाहर लेके आना चाह रहे हैं। तो उसको सपोर्ट देने की जरूरत है। असेसिंग द प्रोग्रेस,
प्रोग्रेस को जब एसेस करना है कि जो हम डिजिटली डिटॉक्स पीरियड यूज कर रहे हैं, डिटॉक्सिंग पीरियड जो है, इसको जब हम यूज कर रहे हैं तो उसकी प्रोग्रेस देखनी है, हमने कहाँ से शुरू किया था, हमें कहाँ तक पहुंचना था और अभी हम किस स्टेज पे हैं। तो उस स्टेज को डिजिटल हैबिट में हमें जो हमने अभी बात की हेल्दियर डिजिटल हैबिट्स की, वो डिजिटल हैबिट्स उसमें कितनी डेवलप हुई हैं, कितना और हमें उस पर काम करना होगा और क्या सुधार हम उसमें कर सकते हैं। तो considering the long term changes, we need to point out the advantages and disadvantages we are experiencing during the digitally detox period. तो बहुत सोच समझ के we need to plan, prepare and act accordingly. Next. जितनी बात अभी हमने की, अगर डिटॉक्स को स्टार्ट करना है, पहला बी माइंडफुल, बच्चे को प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाना है। In what sense? In the sense of their emotions, in sense of their feelings. जब भी वो डिवाइस यूज करें तो उनको उस टाइम भी उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जब वो डिवाइस यूज नहीं करें तब भी उनको उस प्रेजेंट मोमेंट में, जो आप कर रहे हैं उसको फील करिए, उस पे रहिए, ना इधर कुछ हमें और नहीं सोचना है। तो बी माइंडफुल। अगर डिजिटल डिटॉक्स हो रहा है तो पहला है कि टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। अनप्लगिंग की बात सृष्टि मैडम ने कर चुकी है कि कैसे हम अनप्लग शेड्यूल करें फ्रॉम योर डिवाइसेस। जैसे हम कहते हैं बिफोर बेड टाइम हमें करना है, वाइल टेकिंग मील हमें अनप्लग करना है, उस टाइम हम नहीं यूज करेंगे। इस तरह के कुछ हैबिट्स हमारे बच्चों में हमें विकसित करनी होगी और साथ में हमें भी वो हैबिट विकसित करनी होगी। कितना यूज हम कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे मोबाइल में जब हम ऑन करते हैं वो हमें बता देता है कि कितना टाइम आपने कौन सा ऐप यूज किया, तो उससे भी आप अपना ग्राफ एनालाइज कर सकते हैं। बच्चों को भी बोल सकते हैं कि देखो इतना आप यूज कर रहे हो जो कि ये ठीक नहीं है। विद इन द लिमिट दे आर यूजिंग इट इज वेरी गुड एंड वी नीड टू अप्रिशिएट दैट आल्सो कि आज आपने बिल्कुल टाइम में यूज किया है। सोने के पहले हमें डिस्कनेक्ट करना है। नोटिफिकेशंस जनरली स्विच ऑफ करिए, नहीं तो पूरे टाइम आपको नोटिफाई फोन करता रहेगा। जितने भी ऐप है उसके सभी ऐप से नोटिफिकेशन आपको स्विच ऑफ करने चाहिए। डाउनग्रेड योर फोन, जितना कम उसका यूटिलिटी रहेगी, अननेसेसरीली डाउनलोड उसमें नहीं होना चाहिए। जितना जरूरी है, बेसिकली फोन का पर्पस जो पहले था वो था सिर्फ बात करना, अभी उसके मल्टीपल पर्पस मल्टीपल यूजेस आ गए। डिटॉक्स रिट्रीट, अगर हम डिटॉक्स पीरियड में हैं तो हमें उस टाइम पे उसको यूज करना है। चाहे आप नेचर में जाइए, चाहे आप खेलिए, चाहे आप बात करिए, दोस्तों से मिलिए, तो कैसे हम उसको रिट्रीट कर सकते हैं ये हमें सोचना होगा। कल्टिवेट योर हॉबीज एंड सोशल लाइफ, आप अपने इंटरेस्ट पे अनुसार अपने टाइम को यूज करिए। आपको पेंटिंग करना पसंद है, पेंटिंग कीजिए। आपको राइटिंग करना पसंद है, आप राइटिंग कीजिए। इफ यू लाइक रीडिंग, रीडिंग कीजिए। तो ये सब हमें प्रमोट करना है, उन पे हॉबीज डेवलप करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, उनको सोशल लाइफ से जोड़ना है। तो इंटरेक्शन कहाँ से शुरू होगा? घर से शुरू होगा। फॉर दैट इंटरेक्शन के लिए हमें उनके साथ होना होगा, तो वी नीड टू गिव देम टाइम, वी नीड टू स्पेंड टाइम विद देम। कैसे हम करें कि बच्चे को जो हम चाह रहे हैं उसके लिए पहले हमें अपना समय भी उसके साथ निकालना होगा। टीचर को उससे बात करनी होगी, क्योंकि टीचर एक ऐसा व्यक्ति है, they really understand, when they can see even the faces of their children, उनको समझ में आता है बच्चा सैड है, खुश है, वो टेंशन में तो नहीं है। चेहरा पढ़ के बच्चे को टीचर्स जानते हैं, क्योंकि वो इतना जुड़े होते हैं। अगर टीचर उससे बात करेंगे तो नो डाउट हम डिटॉक्स में हेल्प कर पाएंगे बच्चे को। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच कल्पना मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस डिजिटल डिटॉक्स को समझाया हमारे सभी व्यूअर्स को। और जैसा कि कल्पना मैम ने भी कहा और बाकी जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज इस पूरे टॉपिक पर हमने बात किया कि डिजिटल डिटॉक्स जो है वो हमें क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो हम सभी फेस करते हैं। एंड बहुत अच्छी बात कही हमारे गेस्ट ने भी कि किस तरीके से हम जिनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ हम ज़्यादातर रहते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए या हमारे फ्रेंड्स हो गए, हम जो जो चीज़ें अपने आसपास यानी अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, हम उसी हैबिट को जो है उसी के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें भी सीखनी चाहिए। अपने पेरेंट्स जो हो गए, किसी भी टीचर्स हो गए,
इन सभी को लेकर के भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब यहाँ पर रोल की बात करते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल होता है, तो उस पर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे साथ सृष्टि मैम भी जुड़ी हुई हैं, तो एक मैं जल्दी से और आखिरी सवाल सृष्टि मैम से लेना चाहूँगी कि मैम, पेरेंट्स और जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो डिजिटल डिटॉक्स में ये हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो मैम, मैं चाहूँगी आप इसका आंसर करें, सृष्टि मैम। Sure, ma'am. यस मैम। All right, so parents and teachers have paramount importance when it comes for facilitating digital detox because they are guiding figures and role model for children. Children can help strike a healthy balance between the virtual and real world. But just as Kalpana ma'am has said, today at times we observe that parents, also because of their busy lives, and sometimes they are seen overoccupied with digital devices, which in turn results in reduction in the frequency of communication between the parent and child. And as it is said that the apple doesn't fall far from the tree, we may see that such children are generally engaged with technology at all times. So it's vital to realize this and make amends for it, because parents have the power to set the tone for for this tech-savvy younger generation. For instance, like following a schedule, spending quality time with children, that will help them become more confident individuals. Encouraging outdoor activities, reading, or shared hobbies. All these create opportunities for children to disconnect and reconnect with their own families. This was going to make family bonds stronger in the process. Also, as you said, teachers, they have a very critical part in this digital detox journey, because integration of offline activities into the curriculum, such as hands-on projects, nature walks, creative exercises for students, all these give the students a chance to step away from the screen and engage in the world around them. So to quickly sum it up, I would say that digital detox helps us restore our own balance and allows us to reclaim our time, creativity, and peace of mind by unplugging these devices, thereby facilitating a deeper connection and reinforcing mental clarity and personal well-being. Also, the determination to step away from screen for a specific time and immerse in ourselves in meaningful offline experiences. It can be in nature or face-to-face conversations or even pursuing offline hobbies. These are going to help us and give us a chance to recharge, refocus, and rediscover the Okay, joys of thank you real so world much, Srishti interactions. ma'am, Thank you, ma'am. for your kind and beautiful words. सो यहाँ पर जितने Thank भी you. व्यूअर्स हैं, आज आप सभी ने डिजिटल डिटॉक्स और जो हमारा मेन टॉपिक था, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिजिटल डिटॉक्स, इसके ऊपर हमने जाना। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, क्यों था, अभी तक आप ये पूरा सेशन देख करके समझ चुके होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर्स, व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। एंड बिकॉज ये हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम रियल लाइफ में ज़्यादा खो जाते हैं और अपनी रियल लाइफ में क्या क्या खूबसूरती है उसको देखना भूल जाते हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए और जितने हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमें उनके साथ जा कर के उस सर्कल में घुलना मिलना चाहिए, ना कि हमें ऑनलाइन मीडियम से अपने फ़ोन में लगे रहना चाहिए। जी हाँ, जैसा कि हमारे कई एक्सपर्ट्स ने भी कही ये चीज़ कि हमें एजुकेशनल टर्म्स को लेकर के भी काफ़ी जगह हमें यूज़ करने पड़ते हैं, ऑनलाइन मीडियम का यूज़ करना पड़ता है, डिजिटल मीडियम का यूज़ करना पड़ता है। बट ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि कब, किस टाइम और कितना हमें डिजिटल में अपना जो है ध्यान देना चाहिए, डाइवर्ट करना चाहिए माइंड को, बिकॉज डिजिटल डिटॉक्सिंग जो हमने बात की वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम को लेकर के। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके का सवाल आपके अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड, अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड हैं, और ये पूरे टॉपिक पर अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, कोई भी ओपिनियन हो जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हो, तो आप हमें सीधे तौर पर हमारे वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, और साथ ही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ़ोन नंबर्स हमारे बताए थे दोनों,
उस पर भी कॉल करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो आज के इस पूरे सेशन में इतना ही, और यहाँ पर अब हम इसे समाप्त करना चाहेंगे, एंड करना चाहेंगे। और फिलहाल जो है जितनी भी पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे पूरे सेशंस को, जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर बनाया, उनका हम यहाँ पर थैंक यू कर लेते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू कल्पना मैम एंड सारिका रघुवंशी मैम, सौम्य साहू मैम एंड सृष्टि मिश्रा मैम। मैम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इतने ब्यूटीफुल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर इसके बाद भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप सभी हमसे देख सकते हैं और हमारे साथ पढ़ सकते हैं, तो वो आप लाइव शेड्यूल देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा होगा आपको। अगला देखेंगे आप सेशन 4 से 5 जो रहेगा हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का। इसके बाद 5 से 5:30 सहयोग का कार्यक्रम जो हर रोज़ हम आपके लिए लेकर के आते हैं, जहां हम बात करते हैं आपके मेंटल वेलबींग को लेकर के। जिस तरीके से ये मनोदर्पण परिचर्चा का सेशन था, उसी तरीके से सहयोग का कार्यक्रम भी वो आप देख सकते हैं। और आखिरी में, क्योंकि आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, और हर हफ्ते शुक्रवार को हम आप सभी के लिए नीपा का सेशन लेकर के आते हैं, जहाँ हम एक फ्यूचर लीडर की बात करते हैं, एक स्कूल लीडर की बात करते हैं, कि जहाँ पर वो आकर के अपनी स्ट्रगल, अपनी स्टोरी को लेकर के आते हैं और हम सभी से शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो ये सभी कार्यक्रम थे जो आप हमसे देख सकते हैं आगे पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी ऑफिशियल चैनल के जरिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। नमस्कार। अब नहीं है हिचकिचाना, मन के स्वास्थ्य पर है ध्यान लगाना। अब नहीं है हिचकिचाना, मन के स्वास्थ्य पर है ध्यान लगाना। मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी। मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी। चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ। चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने, 844-844-0632।